Dear students, welcome to another session of ICAR JRF Physical Science 2020 question paper. So today I have brought the second part, the questions from number 50 to 100, okay, with continuation to our last class. So crop course brings you this and also various other topics and subjects and allied related to agriculture, and also it brings you up many sessions for the best of your preparation in terms of competitive exams. So I, Abhishek Pal, will continue from our last class yesterday. First question: under what condition denitrification is a major mechanism of nitrogen loss from soil? Okay, so your options are well drained, fallow soil, submerged soil, pastured land soil. So your correct answer will be option number C. Okay, submerged soil means your rice field. So from your rice field, your major loss of नाइट्रोजन टेक्स प्लेस, दैट इज द डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस. ओके, सो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है फ्रॉम द नाइट्रोजन चैप्टर, यू कैन से, और सबमर्ज्ड सॉइल के चैप्टर से. ओके, फ्रॉम इंट्रोडक्टरी सॉइल साइंस बाय दिलीप कुमार दास. नेक्स्ट क्वेश्चन: द पैरेट मटेरियल constituted by wind blown transported material containing silt is known as. So ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया हूं. So your options are alluvium, colluvium, loess and dune. So your correct answer is option number, yes, which one? You can tell me the correct answer. It is option number B or C? It is option number C. Okay, B के केस में colluvium तब होगा when it is done by gravity. Next, correct order of wind erosion process is known as. So in this case, correct option is option number, yes, which one will be the correct answer? Your first option is surface creep, saltation, suspension. Then you have saltation, surface creep, suspension, surface creep, saltation, and saltation, suspension and surface creep. So ये क्वेश्चन जो आपका है, ये आपका पूछा गया है फ्रॉम द चैप्टर ऑफ सॉइल इरोशन. Okay, and this question is also asked from soil forming processes. Okay, मैं साथ में चैप्टर का नाम इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को हेल्प हो इन आइडेंटिफाइंग फ्रॉम वेयर द मैक्सिमम क्वेश्चंस आर आस्क्ड. So here option D is the correct answer. Next, available water for plants. Your options are 0.32 to 0.15 bar, 0.1 to 0.2 bar. Then you have above 15 and below 0.1. तो ये क्वेश्चन जो है आपका, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है. दिस इज फ्रॉम द चैप्टर सॉइल वाटर. ओके, सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. नेक्स्ट, soil moisture characteristic curve represents the relationship between. Okay, so ये भी जो क्वेश्चन है, that is also your direct question. Okay, this is also your direct question from soil water chapter. So your options are soil texture and moisture, soil structure and soil moisture content, available soil moisture and soil moisture content, and then you have soil moisture tension. And so यहाँ पे आपका जो होगा वो बेसिकली ये जो होता है आपका सॉइल मॉइस्चर एंड मेट्रिक पोटेंशियल होता है. दैट शुड बी करेक्ट वन. यहाँ पे ऑप्शंस थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है. सो इन दैट केस इट विल बी डी अकॉर्डिंग टू मी. ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है. बुक में मेट्रिक पोटेंशियल, ओके, आई रिपीट, मेट्रिक पोटेंशियल, दिस वर्ड इज मेंशन्ड. तो अगर आपको ऐसा ऑप्शन दिखे तो उसी को हिट करना है, मेट्रिक पोटेंशियल. ओके, ब्लैक कॉटन सॉइल रिप्रेजेंट्स अल्फिसोल, वर्टिसोल्स, एंटीसोल्स, एरिडिसोल्स. सो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है. ब्लैक सॉइल ये महाराष्ट्र में फेमस है. ओके, मध्य प्रदेश में फेमस है, ओडिशा में भी है. सो दिस बिलोंग्स टू द ऑर्डर वर्टिसोल्स. फर्स्ट लॉ ऑफ हीट कंडक्शन इज नोन एज. सो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है फ्रॉम द चैप्टर सॉइल, यू कैन से टेम्परेचर. ओके, एंड ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है फ्रॉम सॉइल्स ऑफ इंडिया. Okay, so Fourier's law,
Fick's law, Darcy's law, and Kirchhoff's law. So your correct answer here, it will be option, yes, it will be option A. Next, deficiency of vitamin A. It causes night blindness, scurvy, anemia, beriberi. So this will be your deficiency of vitamin A से most probably night blindness होती है. Okay, so this is not a question of soil science directly, but such type of questions are being asked in the general part. Active factor of soil formation. So हमने active factor, we know all that. Your options are climate, relief, topography, time. So bio and climate, these are your active factors. So A is the correct answer. Relative proportion of sand, silt and clay is known as टेक्सचर, स्ट्रक्चर, होराइजन एंड सॉइल. तो ये तो आपका सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, तो ये सबको पता है, डेफिनेशन ही है ये. सो दिस इज सॉइल टेक्सचर, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्यूविएशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्युमुलेशन, लीचिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेदरिंग. सो इल्यूविएशन मींस व्हाट? इट इज एक्युमुलेशन फ्रॉम द अपर होराइजन. सो इट विल बी, योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, एक्युमुलेशन, लीचिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेदरिंग. सो इट इज नन अदर देन एक्युमुलेशन. ऑलराइट, सबको समझ में आ रहा है? आई होप यू ऑल आर गेटिंग द क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स. एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेवल of this question? So this is a very standard paper, okay, but still it can provide you a very good score if you have your concepts cleared. Okay, चलो next देखते हैं. Soil pH is measured by making soil water suspension in the ratio of. तो ये जो क्वेश्चन है ये soil pH के चैप्टर से है. आप सब लोग बीएससी एग्रीकल्चर में सॉइल पीएच का एनालिसिस आप लोग किए हो. सो कौन से रेशियो में किए हो? सो बेसिकली 1:2 भी होता है और 1:2.5. सो यू कैन टेक हियर, अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी 1:2.5. ओके, मतलब अगर 10 ग्राम आपका सॉइल हुआ तो 25 ml वाटर होना चाहिए, ठीक है, which is not free living. Okay, your options are Azotobacter, then your options are Cyanobacteria, then Rhodospirillum and Frankia. So the answer will be your, I think, Frankia. क्यों Frankia होगा? Because Frankia free living नहीं है. इसका एसोसिएशन है किसके साथ? With a non-legume, not with a legume, non-legume. तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है from biofertilizer, you can say, or soil microbes. Okay, next. GPS needs at least how many signals from satellites for providing geographic location? Your options are 1 and 3, 4, 2. तो ये क्वेश्चन रिमोट सेंसिंग से है, ठीक है. दिस इज अ अनकॉमन क्वेश्चन. ओके, दिस इज अनकॉमन क्वेश्चन. अगर आपको थोड़ा सा डाउट लगता है, बेटर है स्किप करना rather than just facing negative mark. So इसका करेक्ट आंसर जो है अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी ऑप्शन C, that is 4. Next, most abundant metal mineral in earth's crust. Your options are oxygen, silicon, iron and aluminium. So आग बंद करके ऑक्सीजन आप you can give. अगर मेटल पूछा तो तब क्या होगा? तब होगा आपका एल्यूमिनियम. ओके, दैट इज 8%. एंड ऑक्सीजन है आपका, आई थिंक ऑलमोस्ट इट इज 40 प्लस. Rhizosphere is closely related to soil structure, टेक्सचर, प्लांट रूट सिस्टम, विल्टिंग सिस्टम. तो राइजोस्फीयर जो है आपका, सपोज आप मान लीजिए ये आपका प्लांट रूट्स है, तो ये जो एरिया है इन द विसिनिटी ऑफ द प्लांट रूट, दिस इज नोन एज राइजोस्फीयर, व्हिच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रूट एक्सुडेट्स. मतलब जो रूट से सिक्रेशन होती है, उस सिक्रेशन से जो एरिया इन्फ्लुएंस होता है उसको हम बोलते हैं कि राइजोस्फीयर. सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, प्लांट रूट सिस्टम. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, शेल ऑन मेटामॉर्फोसिस चेंजेस टू. तो ये आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है फ्रॉम सॉयल बायोलॉजी, यू कैन से. ओके, ये क्वेश्चन जो है आपका ये पूछा गया है फ्रॉम द चैप्टर ऑफ रॉक्स. ओके, सो शेल ऑन मेटामॉर्फोसिस इट चेंजेस टू क्वार्टजाइट, मार्बल, स्लेट, बसाल्ट. तो करेक्ट आंसर इज स्लेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इरोशन परमिटिंग क्रॉप इज रेड ग्राम, ब्लैक ग्राम, सोयाबीन, काउपी. ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट सॉइल साइंस का तो नहीं है, a bit you can say it is agronomy oriented question. So according to me, okay, इसमें आप लोग थोड़ा सा अटेंशन देना. You also try to figure out what best can be. थोड़ा सा conceptual है ये क्वेश्चन. According to me,
द आंसर इज रेड ग्राम 99%। क्यों? क्योंकि जो रेड ग्राम है उसका इतना ज्यादा फॉलिएज ग्राउंड में नहीं होता है, तो एज ए रिजल्ट इल्यूशन का प्रोबेबिलिटी है। ओके, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, बायोटाइट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ रॉक फॉर्मिंग मिनरल? बायोटाइट, सो बायोटाइट है क्या पहले हम ये जानते हैं। जो बायोटाइट है दैट इज ब्लैक माइका, जो मस्कोबाइट है दैट इज व्हाइट माइका, सो इट कम्स अंडर माइका। सो माइका जो है दैट इज एक्चुअली ए फाइलोसिलिकेट। Okay, mica is actually a phyllosilicate. So orthosilicate, isosilicate, tectosilicate and phyllosilicate. Your correct answer is D. Next, working range of tensiometer for determination of soil moisture. Your options are 0 to 15, 0 to 0.8, 0.8 to 15, 0 to 0.3. Your correct answer will be कौन सा होगा? ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, 0 से 0.8 होगा। ये क्वेश्चन है आपका फ्रॉम सॉइल वाटर, ये क्वेश्चन है आपका सॉइल मिनरल से। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस कहां से पुट अप किया गया है और कौन से एरिया से, फ्रॉम व्हिच ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस मैक्सिमम क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। Stokes law suggests the velocity of a particle is directly proportional to a density of medium, square of density of medium, radius of particle, square of radius of particle. So your correct answer is, ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज से है। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैं जस्ट इन शॉर्ट में लिख रहा हूं। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट वी हैव फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी इज मैक्सिमम इन द रेंज ऑफ। सो फॉस्फोरस एक ऐसा यूनिक एलिमेंट है, वो ऑलमोस्ट थ्रू आउट द पीएच स्केल रेंज वो रहता है। ओके, सो बट जो प्लांट अवेलेबिलिटी के लिए बात होगी तो ये न्यूट्रल पीएच में सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। सो 6.5 to 7.5, 5.5 to 6.5, 7.5 to 8.5, 8.5 to 9.5। तो कौन सा होगा? 6.5। आप लोगों को जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स है 70, सबका पीएच रेंज आपको देखना है। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस पुट अप होगा, ये मेरा गारंटी है। नेक्स्ट, सॉइल ऑर्डर फॉर ओल्ड एलुवियल सॉइल। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट में आपको ध्यान देना है। जो एलुवियल सॉइल है उसका एक नहीं 2-3 ऑर्डर है, लाइक एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, एरिडिसोल। ओके, तो यहाँ पे ओल्ड एलुवियल पूछा गया है, तो अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर इट शुड बी इंसेप्टिसोल। ओके, अगर एंटीसोल भी दिया गया है, ये तब होता है जब आपका प्रोफाइल डेवलपमेंट है ऑलमोस्ट। ओके, A to C प्रोफाइल डेवलपमेंट इज देयर। ओके, बट एंटीसोल भी गलत नहीं होगा 100%। ओके, तो इन सच ए केस यू हैव टू रिमेंबर योर कंसेप्ट एंड टेक द क्लोजेस्ट वन। अगर ज्यादा कंफ्यूजन है प्लीज डोंट अटेम्प्ट, क्योंकि अगर आप ज्यादा करेंगे तो वहां पे आपको नेगेटिव मार्क मिलने का चांसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ टोटल सॉइल मास ऑफ सॉइल सॉलिड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड इज कॉल्ड बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, प्लास्टिसिटी, पोरोसिटी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज से। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट वन, लाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ। लाइम इज व्हाट? कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? चूना। सैलाइन सॉइल, सोडिक सॉइल, एसिड सॉइल, एसिड सल्फेट सॉइल। सो ऑब्वियसली ये पीएच को बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो एसिड सॉइल होगा क्योंकि उसका पीएच बहुत कम होती है। ठीक है, बहुत कम नहीं, इट इज लेस देन 7 यू कैन से। सो मैक्सिमम क्रॉप दे प्रेफर द पीएच बिटवीन 6 to 7.2। ओके, सो हमें 6 to 7.2 के रेंज में वी हैव टू सेट द पीएच। Next is amount of boron uptake higher in organic soil, acidic soil, acid of humid region, clay soil. Now this is another question, पर ये जो ICAR ने जो ऑप्शन सेट किया मुझे उसमें थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, क्योंकि आप लोग एक बात याद रखना, जो बोरन है उसका अवेलेबिलिटी हमेशा हायर पीएच में होती है। मतलब एसिड सॉइल में बोरन अनअवेलेबल होता है। ओके, तो एसिड सॉइल तो कभी भी नहीं होगा। ओके, ये भी कभी भी नहीं होगा। ओके, सो ये बेसिकली हायर पीएच में होता है। ओके, हायर पीएच, हाई पीएच मतलब आप बोल सकते हो कि मोर देन लाइक मतलब विथ इंक्रीजिंग इन पीएच यू कैन से लाइक 8 और 7, इससे ज्यादा। सेम
also for molybdenum. Its availability increases with increasing pH. तो ये कंसेप्ट आप याद रखना प्लीज. ओके 77. Process of enrichment of surface water bodies with nutrients is known as. Your options are eutrophication, oligotrophication, न्यूट्रिफिकेशन, नन ऑफ द अबव. तो करेक्ट आंसर आपका है यूट्रोफिकेशन. तो ये क्वेश्चन आपका बेसिकली फॉस्फोरस चैप्टर से पूछा जाता है, क्योंकि फॉस्फोरस एक ऐसा एलिमेंट होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच काइंड ऑफ प्रोसेसेस. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल हीट लॉस. तो बेसिकली इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों कंबाइंडली भी सॉइल हीट लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है. तो योर ऑप्शंस आर इनफिल्ट्रेशन, ट्रांसपिरेशन, इवापोरेशन, कंडेंसेशन. तो यहाँ पे आई एम गोइंग फॉर ऑप्शन सी. ओके, ट्रांसपिरेशन भी गलत नहीं होगा. तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है. तो इन सच ए केस यू नीड टू रिकॉल योर बेसिक्स एंड देन हिट अगेन. आई रिपीट, अगर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है तो बेटर to unattempt the question. Okay, next, formula of SAR. So SAR means what? You know, it is a ratio of sodium to calcium and magnesium. तो इसका करेक्ट फॉर्मूला है ये, आई थिंक आप सबको पता है. ओके, कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम. ओके, दिस इज द फॉर्मूला, रूट ओवर अपॉन 2. Regur soil is used to identify which soil. So Regur is, your options are lateritic, red soil, black soil and acid soil. So your correct answer is black. ठीक है, अच्छा लग रहा है. I hope you are enjoying the MCQ questions. Next, the potash bearing mineral dominant in soil. ये कौन सा होगा आपका? Now this is a conceptual question. ओके, नॉट कंसेप्चुअल. ये क्वेश्चन आपका सॉइल मिनरल्स के चैप्टर से है. डायरेक्ट क्वेश्चन है ऑलमोस्ट. मैंने लास्ट में बताया कि नहीं कौन से जगह से है. ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है सॉइल्स ऑफ इंडिया से. ओके, ये क्वेश्चन आपका है सैलाइन सॉइल के चैप्टर से. ओके, फ्रॉम द चैप्टर ऑफ सैलाइन सॉइल. ओके, सो आप लोग प्लीज डोंट मिस दिस पार्ट और चैप्टर्स. सो हियर योर करेक्ट आंसर आउट ऑफ ऑलिवीन, हॉर्नब्लैंड, माइका एंड जिरकॉन इज माइका. Next, the first step in aggregate formation is cementation, dispersion, flocculation, compaction. तो this is a conceptual question. ये भी आपका physical properties और pedology का question है. तो in such a case I will go with option number C. Okay, option C according to me. pH range of sodic soil. तो pH range of sodic soil is always, you know, saline soil is less than 8.5 whereas sodic soil is more than 8.5. So your option out of A, B, C and D, correct one is option number C, which is 2:1 non-expanding mineral. तो ये भी आपका soil mineral से पूछा गया है. Your options are kaolinite, vermiculite, montmorillonite and illite. So correct answer is illite. Next is K in USLE. What is ULSE, guys? Will tell me what is ULSE. ULSE is universal soil loss equation. Okay, that is formulated with some key words, you can say. So here K stands for soil here K stands for, most probably K stands for here soil erodibility only. Okay, it stands for soil erodibility only. Okay, so soil erodibility, soil roughness, slope and hydraulic conductivity. तो ये soil erodibility होगा. और ये जो K है इसका wind और water erosion में it stands for something else. तो please don't confuse. ध्यान से आपको ये वाले पार्ट को स्टडी करना है. Next, epipedon formed under long continued system of farming, albic, orchic, anthropic and molic. So in such a case your correct answer is anthropic. Okay, next one, geohydrological unit of land drains through a common point which is known as pond, water body, watershed, rain shed. तो ये तो हम लोगों ने बहुत बार स्टडी किया. ये क्वेश्चन जो है आपका you can get it in soil water में, like it can, you can somehow find it, but इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर है watershed. ओके, वाटर रिलेटेड पार्ट्स में
हाइड्रोलॉजी में आपको ये वाला क्वेश्चंस मिलेगा, ये एक डायरेक्ट कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ड्राउट टॉलरेंट लेग्यूम ग्रीन मैन्यूर क्रॉप। ओके, ड्राउट टॉलरेंट लेग्यूम ग्रीन मैन्यूर क्रॉप आउट ऑफ ऑल, ये सब साइंटिफिक नेम दिया गया है। ओके, फर्स्ट वन क्रोटोलेरिया जुनशिया एंड टेफ्रोसिया पुरपेरिया, बी विग्ना ट्रेलोबाटा एंड लेंस कुलिनरिस, थर्ड ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम एंड सिम्फोसिस टेट्रागोनालोबा, फोर्थ विग्ना अंगुलिकुलाटा एंड मैक्रोटाइलोमा यूनिफ्लोरम। तो ये मैंने सर्च किया था, ये क्वेश्चन दैट वाज आल्सो लाइक आउट ऑफ माय नॉलेज, तो मैंने जितना ढूंढा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अकॉर्डिंग टू मी। ओके, तो ये जो पार्ट है आई थिंक दिस इज ग्वार। ओके, जो ग्वार का साइंटिफिक नेम है दिस इज सिम्फोसिस टेट्रागोना। ओके, आप लोग इसको चेक करना, प्लीज चेक दिस। ओके, CSI दैट इज क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन फॉर राइस, ये जो भी देगा जस्ट क्लोज योर आइज एंड हीट पैनिक इनिशिएशन पार्ट और बुटिंग। ठीक है, नेक्स्ट वन इज heat flow in soil is mainly due to, so heat flow in soil mainly that is because of, your options are conduction, convection, radiation and condensation. So mainly that will be because of your conduction process. Okay, molybdenum availability is in the range of higher pH, lower pH 7 and 4. So I told you that molybdenum availability it increases with increasing pH. इसके पीछे मैं आपको कंसेप्ट ये बता दूं कि जो molybdenum है that is present as molybdic acid. ओके, ये molybdic acid के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो हायर pH में क्या होता है, इसका डिसोसिएशन होता है, देयर इज ब्रेकडाउन, देन molybdenum जो है MOO4-, ओके, ये वाला फॉर्म दिस इज द प्लांट अपटेक फॉर्म, तब जाके molybdenum प्लांट को मिलता है। तो ये जो डिसोसिएशन होगा दैट रिक्वायर्स हायर pH, सो अवेलेबिलिटी ऑफ molybdenum इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इन pH, तो हायर pH होगा। दिस इज द कंसेप्ट। नेक्स्ट, DDT हैज हाई, DDT ये एक लाइक दिस इज समथिंग वेरी ये आपको ये जो क्वेश्चन है आपका ये पूछा गया है सॉइल पोल्यूशन के पार्ट से। ओके, ये तो डायरेक्टली सॉइल फर्टिलिटी, ओके, ये आपका सॉइल टेम्परेचर का क्वेश्चन है। ठीक है, सो DDT जो है वो सॉइल में भी परसिस्टेंट है और वो अलग अलग बॉडीज में भी रह सकता है ज्यादा। ओके, तो फ्रॉम सॉइल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू तो इसका आंसर सॉइल होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि दैट इज नॉट प्रोन टू एनी सॉर्ट ऑफ डिग्रेडेशन इन एनी टाइप ऑफ बॉडी। ओके, सो अगर सॉइल में है, अगर सॉइल ओरिएंटेड हम डिस्कस करेंगे तो इसका आंसर जाएगा ए, क्योंकि दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर द प्लांट्स एंड ऑल्सो फॉर द सॉइल biota. Okay, next is we have your match the following. Okay, now match the following, आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं like you have to match some questions will be given. I think you all are acquainted with the format. Okay, so first is glycation, laterization, podzolization and humidification. तो सबसे इजी कौन सा है, हम उसको पहले मार्क कर देते हैं, ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन मींस व्हाट, जब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होकर लास्ट स्टेज में जाता है तो इट इज योर ह्यूमिफिकेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव इज ग्लीजेशन। तो ग्लीजेशन जो है दैट विल बी योर कंसंट्रेशन ऑफ Fe and Al। ओके, नेक्स्ट जो लेटराइजेशन है दैट इज योर इट विल बी डीसिलिकेशन, क्योंकि लेटराइजेशन में क्या होता है, सेस की ऑक्साइड्स रहता है, बाकी सब कुछ लीच आउट हो जाता है। एंड व्हाट इज रिमेन्ड, पोर्जोलाइजेशन, तो दैट विल बी योर रिमूवल ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ FeAl, क्योंकि इन सच केस यू गेट सिलिका। नेक्स्ट वन बी मैच द फॉलोइंग है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच द फॉलोइंग है। तो सबसे इजी है मुंसल कलर चार्ट, तो हम मुंसल कलर चार्ट पे मार्क कर लेते हैं। ओके, देन एटरबर्ग लिमिट्स हमने स्टडी किया है, एटरबर्ग चला जाएगा यहाँ पे। ओके, देन यू हैव रॉबिन्सन एंड योडर लेफ्ट। सो फॉर रॉबिन्सन आपका जाएगा पिपेट मेथड। ओके, फॉर रॉबिन्सन यू हैव टू गो फॉर इंटरनेशनल पिपेट मेथड। ठीक है, एंड आपको लास्ट में क्या बचा है, योडर, सो योडर विल बी गोइंग फॉर वेट सीविंग। ऑलराइट, नेक्स्ट वन
दिस इज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेटस ऑफ एन वाटरलॉग्ड सॉइल, मतलब राइस फील्ड में -250 से 300, -150 से 200, 150 से 200, 300 से 400. So your correct answer is obviously -250 to 300. अच्छा लग रहा है सेशन? We have 5 more questions. Let us be attentive and just let us finish it. Alluviation is the process of. So alluviation is washing out. Okay, alluviation is the process of washing out. So here it will be washing out कैसे होगा? With water. इसको H2O चाहिए. Okay, percolating water is required. So what goes? Ions and compounds. So storage, accumulation, ions and percolation, none. So option C is the right answer. Parent material transported by gravity is known as collovium, Lewis, dune, alluvium. So correct answer is collovium. Okay. Depth of puddling in rice. ये क्वेश्चन जो है आपका सॉयल फॉर्मिंग प्रोसेस से पूछा गया है. ठीक है. इन सम क्वेश्चंस आई एम फॉरगेटिंग टू मेंशन कहां से पूछा गया है, बट डोंट वरी, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, आई विल रिस्पॉन्स यू एट अर्लीस्ट. ये क्वेश्चन आपका फ्रॉम पेरेंट मटेरियल सॉइल पेडोलॉजी यू कैन से. ये क्वेश्चन आपका जो है सबमर्ज सॉइल से पूछा गया है. ओके, सबमर्ज सॉइल से. सो डेप्थ ऑफ पडलिंग इन राइस 5, 10, 8, नन ऑफ द अबव. ए. ओके, क्वेश्चन नंबर 100. I in wind erosion stands for. So I in wind erosion stands for soil erodibility index, soil erosion index, then you have dispersion index, none of the above. तो इसका correct answer है soil erodibility index. Okay, so one question was missed out, which is a non-metal micronutrient. So that is none other than iron, boron, molybdenum and copper. So your answer is बोरन, नॉन मेटल, बाकी सब मेटल है. ओके, सो आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन. दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट 2020 ICAR JRF फिजिकल पेपर. मैं जनरल पार्ट का भी डिस्कशन आप लोगों के लिए ले आऊंगा. टिल दैट प्लीज इन्फॉर्म मी व्हाट यू नीड. आई विल वर्क एज पर योर रिक्वायरमेंट. ओके, क्रॉप कोर्स वर्क्स for the students according to their need. Okay, so that's all for today's session. Please subscribe to our channel for more videos, sessions, lectures and informative information. Okay, till that I conclude. Thank you. Thanks for the session.